ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਬੱਚੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਾਰੇ। ਮੈਂ ਹਰਜੀਤ ਕੌਰ ਸਫਲਤਾ ਦੇ ਰੁਖ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦਾ ਪੇਪਰ 18 ਜੂਨ ਨੂੰ ਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇਖਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੇਪਰ ਕਾਫੀ ਔਖਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਹਾਂਜੀ, ਉਹਦੇ ਹੀ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨੈਬ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਦੀ ਸੀਰੀਜ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੇ ਕਰਾਂਗੀ ਮੋਸਟ ਐਕਸਪੈਕਟਿਡ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਿਹੜੇ ਪੇਪਰ 'ਚ ਆਉਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਦਾ ਪੇਪਰ ਆ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਕੀ ਵੇਖਿਆ, ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 5, ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ 2, ਕਲੌਕ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਹੋਏ ਸੀ 2, ਕੈਲੰਡਰ ਦਾ 1 ਤੇ ਕੋਡਿੰਗ ਡੀਕੋਡਿੰਗ ਦਾ 1 ਤੇ ਰੈਂਕਿੰਗ ਦੇ 2, ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਦਾ 1, ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ 1। ਹਾਂਜੀ, ਲਾਸਟ ਈਅਰ 40 ਚੋਂ 15 ਕੁਐਸਚਨ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਸੀਗੇ ਤਾਂ 15 ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪਜ਼ਲ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟੌਪਿਕ ਆ ਜਿਹਦੇ 5 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 2 ਸਵਾਲ ਨੰਬਰ ਸੀਰੀਜ਼ ਤੇ ਕਲੌਕ ਦੇ ਸੀਗੇ ਜੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਰ ਵੀ ਪੈਟਰਨ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਲੱਗਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਆ ਕਿ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਆਏਗਾ। ਬਸ ਕੁਝ 1-2 ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਐਡ ਕਰ ਲਓ। ਬਲੱਡ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਲਾਸਟ ਈਅਰ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਆ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਡਿਸਟੈਂਸ ਐਂਡ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ। ਕੋਡਿਡ ਇਨਇਕੁਐਲਿਟੀਜ਼ ਵੀ ਪੁੱਛ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਿੰਗ ਆਫ ਫਿਗਰਸ ਵੀ ਐਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਟੌਪਿਕਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣਗੇ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨਸ ਆ ਲਓ ਜੀ। ਪਹਿਲਾ ਸਵਾਲ ਆ ਆਪਣਾ ਅਰਿਥਮੈਟਿਕਲ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਦਾ। ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਅ ਪਰਸਨ X, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆ X, ਉਹ ਕੁਝ ਪੈਨਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ABCDEF ਦੇ ਵਿੱਚ। ਠੀਕ ਹੈ, ABCDEF ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ ਡਿਸਟਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਬੰਦਾ ਲਿਖ ਲੈਣੇ ਆ ABCDEF। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਸਪੋਜ਼ A ਗੈਟਸ, A ਨੂੰ ਕੀ ਮਿਲਿਆ, ਟਵਾਈਸ ਦੀ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਨਸ ਰਿਸੀਵਡ ਬਾਈ B। A ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਮਿਲੇ, ਟਵਾਈਸ B, ਡਬਲ ਆਫ B, ਥਰਾਈਸ ਦੈਟ ਆਫ C, 3 ਗੁਣਾ C ਦੇ, 4 ਗੁਣਾ D ਦੇ, 5 ਗੁਣਾ E ਦੇ, 6 ਗੁਣਾ F ਦੇ ਆ ਮਿਲੇ ਜੀ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਵਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਨਸ। ਆਪਾਂ ਕੀ ਦੱਸਣੇ ਆ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਸ X ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਵਨ ਨੰਬਰ ਪੈਨ ਵੰਡ ਸਕੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਵੇਖਣਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਦਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ, A ਨੂੰ ਮੰਨ ਲੈਣਾ ਹੈ X, A ਕੋਲ ਕੀ ਪੈਨ ਮੰਨ ਲੈਣੇ ਨੇ X। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ A ਕੋਲ X ਨੇ ਤਾਂ B ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣੇ X/2, B ਕੋਲ ਕੀ ਹੋਣਗੇ X/2। ਕਿਵੇਂ? ਕਿਉਂਕਿ A ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਡਬਲ ਸੀਗਾ, A ਕੋਲ ਉਹਦਾ ਕੀ ਸੀਗਾ, ਡਬਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ B X/2 ਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਡਬਲ ਸੀਗਾ A ਕੋਲ, ਤਾਂ ਆ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ, X ਹੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ C ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕੀ ਮੰਨਾਂਗੇ X/3, ਕਿਉਂਕਿ X/3 ਮੰਨਾਂਗੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ A ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਸੀਗਾ, 3 ਗੁਣਾ ਆਫ C ਦਾ 3 ਗੁਣਾ ਸੀਗਾ, C ਦਾ 3 ਗੁਣਾ। ਜੇ ਆਪਣਾ X/3 ਆ ਤਾਂ C ਕੋਲ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 3 ਗੁਣਾ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਵੀ X ਆ ਗਿਆ। D ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਹੋਏਗਾ, X/4, F ਕੋਲ X/5, E ਕੋਲ X/5 ਤੇ F ਕੋਲ X/6। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਬਣਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਕਿ A ਕੋਲ ਡਬਲ ਹੈ B ਦਾ, A ਕੋਲ 3 ਗੁਣਾ C ਦਾ, A ਕੋਲ 4 ਗੁਣਾ D ਦਾ, A ਕੋਲ 5 ਗੁਣਾ E ਦਾ, A ਕੋਲ 6 ਗੁਣਾ F ਦਾ। ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਕੁਐਸਚਨ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਬਣਾ ਲਿਆ ਤਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਈਜ਼ੀਲੀ ਸੋਲਵ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟੋਟਲ ਪੈਨਸ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਟੋਟਲ ਪੈਨ ਕੱਢਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਇਹਦਾ ਐਲਸੀਐਮ ਲੈ ਲਿਆ। ਐਲਸੀਐਮ ਕਿਹਦਾ ਲਿੱਤਾ, 2 3 4 5 6। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਲਿੱਤਾ 2 3 4 5 6 ਦਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਜਾਊਗਾ, 60। ਤਾਂ ਐਲਸੀਐਮ ਆ ਗਿਆ 60। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ਼ਨ ਹੋਏਗਾ ਉਹ 60 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ ਹੋਏਗਾ ਜੀ, 60 ਦਾ ਮਲਟੀਪਲ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਐਲਸੀਐਮ ਆ 60 ਤੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜਵਾਬ ਹੋਏਗਾ, X ਦੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਨੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ 60 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 120 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 180 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 240 ਹੋਣਗੇ ਜਾਂ 300 ਹੋਣਗੇ ਐਜ਼ ਔਨ। ਪਰ ਆਪਣੇ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਮਿਨੀਮਮ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਨਸ, ਮਤਲਬ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਪੈਨ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨਸ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਜੇ ਮੈਂ 60 ਲਵਾਂਗੀ, ਜੇ ਮੈਂ X ਨੂੰ 60 ਲੈ ਲਾਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੇ। ਆ ਦੇਖੋ ਜੀ, A ਨੂੰ ਜੇ ਮੈਂ ਦੇ ਦਾਂ 60 ਪੈਨ, B ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਦੇਤੇ 60/2 30, C ਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਦੇਤੇ 60/3 20, D ਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਦੇਤੇ 60/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 15 ਆ ਗਿਆ ਔਡ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪਣਾ 60 ਆਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ 120 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਚੱਕਣਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਮਿਨੀਮਮ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ A ਨੂੰ ਜੇ 120 ਦੇ ਦਈਏ ਤਾਂ B ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਜੀ, 120/2, ਕਿਉਂਕਿ X ਆਪਣਾ ਜੇ 120 ਆ ਤਾਂ 120/2 ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ, 60 ਆ ਗਿਆ। C ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 120/3 ਯਾਨੀ ਕਿ 40 ਆ ਗਏ। D ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 120/4 ਯਾਨੀ ਕਿ 30 ਆ ਗਏ। E ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਜਾਣਗੇ, 120/5 ਯਾਨੀ ਕਿ 24। ਤੇ F ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਆ ਗਏ, 120/6 ਯਾਨੀ ਕਿ 20। ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਈਵਨ ਨੰਬਰਸ ਨੇ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲ 'ਚ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ, ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਨਸ, ਕਿੰਨੇ ਟੋਟਲ ਨੰਬਰ ਆਫ ਪੈਨਸ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਰ ਦੋ ਜੋੜ। ਤਾਂ 120 + 60 + 40 + 30 + 24 ਤੇ 20,
ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜੋੜ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਜਾਊਗਾ 294। ਉਹਨੂੰ ਘੱਟੋ ਘੱਟ x ਕੋਲ ਕਿੰਨੇ ਪੈਨ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ 294। चलो जी अगले सवाल वाल वादे आ। अगला सवाल की कहता है, अगला सवाल है अपना नंबर सीरीज का। अपने क्वेश्चन च पूछदा है क्वेश्चन मार्क च की आना है। हुण आपां इहनूं कोई भी ट्रिक है, जरूरी नहीं है कि हर एक क्वेश्चन च इदां ही ट्रिक लगे। इन्हां क्वेश्चनस दे करन दा कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होंदा। कोई भी क्वेश्चन किसी भी तरीके नाल हो सकता है। हुण इहदे च देखो की हो रहा है 4 + 9 + 2 आ की बनिया 13 ते 2 15 आ 15 बन गया। 3 + 5 8 8 ते 7 15 आ भी 15 बन गया। 8 + 1 9 9 च कितना ऐड करिए कि 15 बन जाए 6। तो अपना जवाब की आ जाऊगा इहदा बी ऑप्शन। चलो जी अगला सवाल वेखदे आ। अगला सवाल की कहंदा है, अगला सवाल भी अपना नंबर सीरीज दा है। पुछदा क्वेश्चन मार्क च की आना है। आपां ने इहदा दोजां च पैटर्न समझना है तो इहदे च दसना है की आ रहा है। तो चलो हुण इहदे च देखो की हो रहा है। 30 चों 24 घटाए, 30 चों 24 घटाया आ गया 6। 6 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 48। ठीक है 30 ਚੋਂ 24 ਘਟਾਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਈਨਸ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਆਇਆ ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੋ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ ਜੀ 48। ਐਦਾਂ ਹੀ 23 ਚੋਂ 12 ਘਟਾਓ, 23 ਚੋਂ 12 ਘਟਾਇਆ ਤੇ 11 ਆ ਗਿਆ ਤੇ 11 ਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰਤਾ ਜੀ 88 ਆ ਗਿਆ। ਐਦਾਂ ਹੀ ਅਗਲਾ ਕੱਢਣਾ 92 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ, 92 ਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਈਨਸ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ 8 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 48 ਆ ਜੇ। ठीक है जी हुण 8 नाल गुणा करिए तो 48 आ जाए। हुण मैनू पता है कि देखो 92 नूं आपां की करना पेगा, जे आपां 48 लेना है तो अपना इधर कितना आना चाहिए 6 आना चाहिए। ठीक है जी आपां 48 लेना तो की आना चाहिए 6, यानी कि इधर 6 का डिफरेंस आना चाहिए। तो 92 चो जे मैं 6 घटा दा, जे 92 चो मैं 6 घटा दा तो कितना आएगा 86। तो की आएगा 86, या 92 च 6 ऐड कर दा तो 98। 98 तो ऑप्शन च है नहीं, फिर अपना आंसर क्या आऊगा 86, क्योंकि 6 घटाने ने तो 86 आ जाऊगा जी। चलो जी अगला सवाल वेखदे आ। अगला सवाल आ अपना पजल दा, ध्यान नाल समझियो पजल नूं। हाँ जी शॉपकीपर ने एल्कोहल बोटल्स रखिया ने, डिफरेंट एल्कोहल ब्रांड्स ने। ठीक है काउंटर च रखिया ने, 1 रो ओनली 1 ब्रांड इज प्लेस। द नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ ईच ब्रांड इज डिफरेंट। ठीक है वक्रे वक्रे ब्रांड्स दियां वक्रे वक्रे नंबर ऑफ बॉटल्स ने। फर्दर इंफॉर्मेशन इज गिवन बिलो। शॉपकीपर हैज नॉट मोर देन 7 बॉटल्स ऑफ एनी ब्रांड इन द शोरूम। ठीक है शॉपकीपर को 7 बोतलों तो ज्यादा किसी भी ब्रांड दियां नहीं है। ठीक है 7 होणगियां 6 होणगियां 5 होणगियां 4 होणगियां 3 होणगियां 2 होणगियां 1 होणगी, पर 7 तो ज्यादा नहीं होएगी। हुण अपने कोल ब्रांड केड़े केड़े आ, पहले तो लिख लेने आ रॉयल स्टैग, फिर अगला की है ब्लेंडर्स प्राइड, अगला की है इंपीरियल ब्लू, अगला की है मैकडॉवल्स, अगला की है बकार्डी, ऑफिसर्स चॉइस। नैक्सट है ऑफिसर्स चॉइस। अपने को आ हो गया 6 तरह दियां ब्रांड्स हो गए एल्कोहल दे। हुण इन्हां दियां बोतलां किन्नियां किन्नियां ने, आही सवाल आ। तो अपने कोल पजल दे 2 सवाल भी आ सकते हैं, 5 भी आ सकते हैं। हुण आ 2 सवालों का क्वेश्चन आ, 5 भी आ सकते हैं। तो चलो हुण इहदे च बोतलां पाणियां, अगे पढ़दे हां। The bottles of Royal Stag are 3 more than of Blender's Pride। तो जी रॉयल स्टैग दी है 3 ज़्यादा ने किस तो ब्लेंडर तो इत्थे लिख लेने कि जी रॉयल स्टैग है वो 3 बोतल ज़्यादा ने किसे तो ब्लेंडर्स प्राइड तो। विच इज़ 2 more than of इंपीरियल ब्लो। आ तो मैं पहले ही दस्या है कि जे अपने कोल विच वर्ड आ जाए हू वर्ड आ जाए तो किहदी गल हो रही आ ब्लेंडर्स प्राइड दी, जिहड़ा उहदे नाल आ। तो ब्लेंडर प्राइड दियां 2 बोतलां ज़्यादा ने इंपीरियल ब्लू तो इत्थे लिख लैंदे आ ब्लेंडर्स प्राइड दियां की ने 2 बोतलां ज़्यादा ने इंपीरियल ब्लू तो। अगे पढ़ते हैं, अगे की कहंदा है द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ इंपीरियल ब्लू इज एन ऑड नंबर। तो जिहड़ियां इंपीरियल ब्लू दियां वो ऑड नंबर है, लेस दैन 4, 4 तो लेस ऑड नंबर। हुण 4 तो लेस ऑड नंबर की होएगा, या तो 1 होएगा या 3 होएगा, या तो 1 होएगा या 3। ठीक है जी तो आप इत्थे 2 पॉसिबिलिटीज बनणगियां, 1 भी हो सकता है 3 भी हो सकता है। जे इंपीरियल ब्लू दियां, हाँ जी इंपीरियल ब्लू आ वाला सीगा, इहनूं आपां 1 दे दईए या 3। ठीक है 1 या 3 ऑड नंबर आ। जे इंपीरियल ब्लू दियां 1 है तो ब्लेंडर प्लाइट्स दी की हो जाणगियां 2 ज़्यादा, यानी कि 3 हो गया। इधर किनियां हो जाणगियां 5 हो जाणगियां। तो इदां ही अपने कोल जिहड़ा आ वाला आ रॉयल स्टैग ओदियां की है 3 ज़्यादा ने बीपी तो। हुण इस तो 3 ज़्यादा यानी कि 3 + 3 6, इत्थों 3 ऐड कीतियां तां 8, पर आपां नूं की कहा गया सी कि 7 बोतलां तो ज़्यादा किसी दी भी नहीं है, 7 बोतलां तो ज़्यादा किसी दी भी नहीं है। तो आ पॉसिबिलिटी तां कट गई, आ पॉसिबिलिटी तां कट गई कि 7 तो ज़्यादा तां किसी दियां भी नहीं है। हाँ जी अपने कोल आ 3 आ गए, 6 3 1।
ठीक है 6 3 1 3 आ गए अगे पढ़ते हैं अगे की कहता है द टोटल नंबर ऑफ बॉटल्स ऑफ मैकडॉवल्स वाज 1 लेस देन रॉयल स्टैग ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੈਕਡੋਵਲ ਦੀ ਆ ਉਹਦੀ ਇੱਕ ਬੋਤਲ ਘੱਟ ਆ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲੋਂ ਰॉयल स्टैग ਨਾਲੋਂ ਆ ਮੈਕਡੋਵਲ ਆ ਇੱਕ ਘੱਟ ਆ ਯਾਨੀ ਕਿ 5 ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਕੀ ਕਿਹਾ ਮੈਕਡੋਵਲਸ ਬੋਟਲ ਵਰ ऑड इन नंबर बिल्कुल सही ऑड इन नंबर आ गया द बॉटल्स ऑफ बकार्डी वर नॉट मोर देन दैट ऑफ ऑफिसर चॉइस ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਰਡੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਆ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਕੀ ਰਹਿੰਦਾ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਨੰਬਰ ਰਹਿੰਦਾ 2 4 ਜਾਂ 7 2 4 ਜਾਂ 7 ਹੁਣ ਬੋਤਲਾਂ ਦੋ ਨੇ ਨੰਬਰ 3 ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਬਕਾਰਡੀ ਹੈ ਉਹ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਤਾ ਦ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਿਚ ਵਾਸ ਨਾਟ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਆ ਉਹ ਈਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਦੀ 7 ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਬਕਾਰਡੀ ਦੀ 2 ਜਾਂ 4 ਕਿਉਂਕਿ ਬਕਾਰਡੀ ਦੀ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ 7 ਆਪਣਾ ਇੱਧਰ ਆ ਗਿਆ ਬਕਾਰਡੀ ਦਾ ਕੀ ਆ ਗਿਆ 2 ਜਾਂ 4 ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ ਇਹਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਆਨਸਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਕੀ ਪੁੱਛਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਆਫਿਸਰ ਚॉइस ਦੀਆਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਬੋਤਲਾਂ ਨੇ 7 अगले क्वेश्चन वाल वादे हैं अगला की कहता है वो कहता है दसो केड़े ब्रांड दियां सब तो घट बोतलां ने केड़े ब्रांड दियां सब तो घट बोतलां ने सब तो घट मतलब एक आ केड़ा है इंपीरियल ब्लू हाँ जी केड़ा ब्रांड आ इंपीरियल ब्लू ए ऑप्शन चलो जी ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ अगले सवाल वाल वादे हैं अगला सवाल आ अपना पजल दा हाँ जी फिर पजल आ गया पजल दे अपने 5 सवाल आने ने जरूरी नहीं है कि 5 दे 5 आ जाण इकट्ठे 2 ते 3 ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ 1 ਤੇ 4 ਦਾ ਸੈੱਟ ਵੀ ਆ ਸਕਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ 2 ਪਜ਼ਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਇਸ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਵੇਖਦੇ ਆ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ 7 ਬੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਥ डेट ऑफ मंथ दिते हुए हैं जनवरी मार्च अप्रैल मई जून सितंबर आ मैं तुहानू बार-बार दस दियां पजल दा क्वेश्चन स्टार्ट किवें करना है पजल दा क्वेश्चन किवें स्टार्ट होएगा बंदियां दे ना तो या डेज तो पर जे अपने कोल फ्लोर्स आ गया मंथ आ गया तो आपां बंदियां दे ना तो शुरू नहीं करना हुण अपने कोल इत्थे की आ गए मंथ आ गए तो आपां इस क्वेश्चन नू किवें शुरू करांगे मंथ तो आपां इस क्वेश्चन नू शुरू करना है मंथ तो किहड़ा महीना दिता होया जनवरी दा मार्च दा ਅੱਗੇ ਕਿਹੜਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਪ੍ਰੈਲ ਦਾ ਅਗਲਾ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਜੂਨ ਦਾ ਅਗਲਾ ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਫਿਰ ਸਤੰਬਰ ਦਾ ਫਿਰ ਦਸੰਬਰ ਦਾ ਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਮਹੀਨੇ ਆ ਗਏ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਦਿਨ ਵੀ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਠੀਕ ਹੈ ਤੀਆਂ ਦਾ ਮਹੀਨਾ ਕਿ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹਾਂਜੀ ਜਨਵਰੀ ਹੁੰਦਾ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਮਾਰਚ ਵੀ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਅਪ੍ਰੈਲ 30 ਦਾ ਜੂਨ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ 30 ਦਾ ਜੁਲਾਈ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਸਤੰਬਰ ਵੀ 30 ਦਾ ਦਸੰਬਰ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਇਟ ਮੀਨਸ ਆਪਣੇ ਕੋਲ 4 ਮਹੀਨੇ ਨੇ ਕੱਤੀਆਂ ਦੇ ਤੇ 3 ਮਹੀਨੇ ਨੇ 30 ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਤਾਂ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਆਈਜ਼ ਬਰਥਡੇ ਫਾਲ ਇਨ ਮੰਥ ਆਫ 31 ਡੇਜ਼ ਆਈ ਦਾ ਬਰਥਡੇ ਕਦੋਂ ਆਇਆ ਕੱਤੀਆਂ ਦੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਈ 31 ਨੂੰ ਬੋਰਨ ਕੱਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ 'ਚ ਬੋਰਨ ਆ ਜੇਜ਼ ਬਰਥਡੇ ਮੰਥ ਇਜ਼ ਆਫਟਰ ਆਈਜ਼ ਜੇ ਦਾ ਮੰਥ आफ्टर आई तो बाद होएगा इमीडिएट वर्ड नहीं लिखा आफ्टर आई मतलब आई तो बाद ही आएगा जे ठीक है जी पर जे केड़े महीने चा जेज मंथ इज आफ्टर आईज बर्थडे मंथ एंड्स बर्थडे फॉल्स इन द मंथ हैविंग 31 डेज अगे उन्हें कहता जेड़ा एन दा बर्थडे आ वो केड़े महीने च आ रहा है 31 डेज तो एन दा मंथ भी 31 डेज हो गया एन भी 31 डेज हो गया तो एक आ भी लिखा है जेज मंडे जेज बर्थडे मंथ कम आफ्टर एनस बर्थडे एन तो बाद आएगा तो एन तो बाद एन कत्तियां दा ते जे उस तो बाद ने आना अगे उन्हें की किया एल हैज बर्थडे इन मंथ ऑफ 30 डेज एल केड़े महीने च बॉर्न होया 30 दिनां च होया ठीक है के हैज बर्थडे इन द मंथ ऑफ 31 डेज बट नॉट इन जुलाई एंड मार्च के केड़े महीने च होया कत्तियां च के कत्तियां च होया पर जिहड़ा के आ जुलाई ते मार्च विच नहीं है तो इधर के ने नहीं आना के ने इधर नहीं आना या तो के जनवरी च होएगा या के दिसंबर च होएगा तो आप इधर के नू एक बारी इत्थे पा लिया एक बारी के नू इत्थे पा लैंदे आ ठीक है क्योंकि के दी पॉसिबिलिटी या तो जनवरी दी है या ए आ ते आई ते एन तो बाद जे ने आना है तो आई भी कत्तियां दा तो आप इत्थे लिखदे आ आई फिर एन भी कत्तियां दा तो हुण एन आ गया कत्तियां दा ਇੱਥੇ ਪਾਇਆ n ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਹੁਣ ਜੇ 30 ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਠੀਕ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਧਰ ਆਪਾਂ ਦੇਖਿਆ i ਕੱਤੀਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪੋਸਿਬਿਲਿਟੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਂਦੇ ਆ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋਰ ਕੀ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਤਾਂ l ਹੋ ਗਿਆ 30 ਦਾ ਤੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖਦੇ ਆ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਬਰਥਡੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ 30 ਦੇ ਨੇ ਹਾਂਜੀ ਅੱਗੇ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਕਿਹਾ m's ਬਰਥਡੇ
fall in a month of 31 days but before September। M ਦਾ ਬਰਥਡੇ 30 ਦਿਨਾਂ ਚ ਆ ਰਿਹਾ, 30th ਹੈ, ਪਰ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 30 ਦਿਨ ਆ ਦੋਨ ਦੇ ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਦਿੰਦੇ ਆ I ਤੇ N, ਆਪਾਂ ਚੱਕ ਤੇ I ਤੇ N, ਠੀਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ M ਆ ਉਹ ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਹੋਏਗਾ। M ਕਿੱਥੇ ਹੋਏਗਾ? ਜਾਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਇੱਥੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਰਫ ਚ ਲਿਖ ਲੈਂਦੇ ਆ M is in April or June, ठीक है। आगे पढ़ते हैं, आगे की क्या? ओज बर्थडे मंथ इज बर्थडे मंथ इज नॉट आफ्टर जे तो बाद नहीं है, तो जे तो बाद नहीं है तो जे तो पहला होएगा, जे तो पहला होएगा तो आई ते एन भी जे तो पहला ने, आई ते एन भी जे तो पहला ने, आई भी कत्तियां दा है तो एन भी कत्तियां दा है, तो आ गया तो जे तो पहला। हाँ जी, उन्हें की किया कि जड़ा ओ है वो कित्थे होएगा? नॉट आफ्टर, तो ओ दा मंथ अपने कोल ए दोनों च ही आ गया, तो आप इधर जे ले लेने, इधर जे ले लेने इस केस, तो अपने कोल OM या MO, ये बन गया OM या MO। हुण जे आप इधर देखिए अपने कोल IN आ गए, ठीक है। हुण जे दा आपां नूं पता नहीं, पर आपां नूं पता है O ते M इधर आणगे, M ते O, ठीक है। O ते M या M ते O, ते जिहड़ा जे है वो 30 दा भी हो सकता है ते 31 दा भी हो सकता है। अगे देखते हैं अगे की कह रहा है, M बर्थडे फॉल्स बिफोर O, M दा बर्थडे O तो पहला है, तो आ श्योरिटी होगी M दा बर्थडे O तो पहला, तो इधर आएगा M, इधर आएगा O, MO। अगे उन्हें की किया, जेज बर्थडे इज नॉट इन दिसंबर, जे दा बर्थडे दिसंबर च नहीं है, ठीक है जी। आप इत्थे जे नूं ऊपर ही पाया, थल्ले नहीं पाया जी। अगे उन्हें की किया, एम्स बर्थडे फॉल्स बिफोर ओ बट नॉट इन द मंथ ऑफ जून। हाँ जी, ठीक है, तो एम दा बर्थडे जून च नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही। ओनली 3 पर्सनस हैव बर्थडे बिटवीन N एंड L, N ते L दे विच 3 बर्थडे होने चाहिए, N ते L दे विच। हुण आ रहा N 1 2 3, इधर आ गया L, जे आ N आ तो इधर जे आप L पाइए तो इधर तक कट रहा है, तो आ पॉसिबिलिटी गलत होगी, N ते L, तो जे अपना आ गया इधर, जे अपना आ गया इधर, तो L 30 दा सीगा, तो अपनी सेकंड पॉसिबिलिटी बिल्कुल सही है। बहुत ध्यान नाल पजल्स करने हैं, ठीक है, सवाल गलत नहीं करने। तो चलो आप इन्हां दे आंसर्स देने हैं। पहला की कहंदा है, जनवरी दे मंथ विच कौन बॉर्न होया, तो जनवरी दे मंथ विच कौन बॉर्न होया? आई। अगला सवाल देखते हैं, हाउ मेनी पर्सनस हैव बर्थडे बिटवीन I एंड K, आई ते के दे विचकार किन्ने बर्थडे ने? आई ते के दे विचकार 1 2 3 4 5 बर्थडे ने, आई ते के दे विचकार किन्ने बर्थडे ने? 5, तो यानी कि मोर देन 4 की आ जाऊगा, मोर देन 4। हाउ मेनी पर्सनस हैव बर्थडे आफ्टर M, M तो बाद। हाँ जी, M तो बाद किदा बर्थडे आ? M तो बाद किन्ने पर्सनस दा? 1 2 3 4, 4 जणियां दा, तो किन्ने बंदे आ गए? 4, तो इसदा जवाब आ गया ऑप्शन नंबर डी। चलो जी, अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल है अपना अरिथमेटिकल रीजनिंग दा। क्वेश्चन की कहता है, एक बस सिटी X तो चली, एक बस कितों चली? सिटी X तो। द नंबर ऑफ वुमेन इन द बस इज हाफ द नंबर ऑफ मैन, जिहड़ियां कुड़ियां ने वो मुंडियां तो अद्धियां ने। इन सिटी Y 10 मैन लीव द बस, ते 5 वुमेन एंटर कर गई। हुण नंबर ऑफ मैन ते वुमेन की हो गए? बराबर हो गए। तो दसो किन्ने बंदियां ने एंटर किया सीगा जदों बस चली सीगी? तो आप इधर मान लेने आ, लेट मैन बी 2x, क्योंकि जेडे मैन है वो डबल है, तो वुमेन की है? अद्धियां ने, तो वुमेन नूं आपां की मान लेने आ? x मान लेने आ। हुण जदों सिटी Y च पहुंची, 10 मैन लीव द बस, तो 10 मैन छड़ के चले गए, तो 10 मैन लीव छड़ के चले गए, तो वुमेन्स कितनी आ गई? वुमेन्स आ गया 5, वुमेन 5 एंटर कर गया, तो उन्हें की क्या? इक्वेशन बराबर होगी, इक्वेशन बराबर होगी, मैन ते वुमेन की हो गए बराबर। हुण इहनूं सॉल्व करना है, आ 2x आया, इधर -x आ गया, आ 5 आया, उधर जाके प्लस हो गया, तो अपने कोल जिहड़ा x आ कितना आ गया? 15, x कितना आ गया? 15, तो अपने कोल वुमेन्स आ गई 15, तो मैन किन्ने आ गए? 30, तो आपां नूं की पूछा? टोटल पैसेंजर्स 30 ते 15 कितना आ गया? 45, टोटल किन्ने पैसेंजर्स ने? 45, तो अपना जवाब क्या आ जाऊगा? 45। चलो जी, अगला सवाल देखो। अगला सवाल भी अरिथमेटिक रीजनिंग दा की कहंदा है, इन अ फैमिली फादर टुक 1/4 ऑफ द केक and he had 3 times as much as each of the other family members had। हुण एक फादर ने 1/4 केक ले लिया, आ फादर ने ले लिया हिस्सा, ठीक है, आ हिस्सा 1/4 ले लिया पापा ने। 1/4 का मतलब की होंदा है? 4 हिस्से ने टोटल, उहदे चों 1 हिस्सा उहदे प्यो ने ले लिया, ठीक है, 4 हिस्से ने टोटल, जिहदे चों 1/4 हिस्सा उहदे प्यो ने ले लिया, पापा ने ले लिया।
फिर उन्हें की किया कि जेड़ा पापा कोल आ वो कितना हिस्सा है 3 टाइम्स एज मच एज ईच ऑफ द अदर मैंबर्स हैज 3 गुणा हिस्सा है ਉਹਦੇ ਕੋਲ आ ਜਿਹੜਾ हिस्सा है वो 3 गुणा है आ 3 गुणा हिस्सा है यानी कि इधर भी 3 बंदे शेयर कर रहे हैं आ भी 3 बंदे शेयर कर रहे हैं आ भी 3 बंदे शेयर कर रहे हैं मतलब आ हिस्सा केक का 3 बंदे शेयर कर रहे हैं आ भी 3 बंदे शेयर कर रहे हैं आ भी 3 बंदे शेयर कर रहे हैं ठीक है जी क्योंकि प्यो कोल 3 गुणा हिस्सा है 3 गुणा ठीक है 3 गुणा 3x आ जे इन्हां कोल x आ ते इहदे कोल की है 3x ठीक है तो आ 3 बंदे शेयर कर रहे हैं तो क्वेश्चन च की पूछा जी टोटल नंबर ऑफ फैमिली मैंबर्स किन्ने फैमिली मैंबर्स होए टोटल 3 6 9 ते 1 10 तो किन्ने आंसर आ गया जी 10 जी। चलो जी अगला सवाल अपना रैंकिंग दा पंजाब दे पेपर च बहुत पूछा जाता है ध्यान नाल वेखियो इन अ रो ऑफ गर्ल्स कुड़ियां दी रो आ नित्या एंड सुगन्या ऑक्यूपाइज 9th फ्रॉम राइट एंड 10th फ्रॉम लेफ्ट हुण देखो 9th फ्रॉम राइट हुण देखो इत्थे वर्ड की लिखिया रिस्पैक्टिवली जदों अपने कोल वर्ड आ जाए रिस्पैक्टिवली एदा मतलब पहले गल हो रही है नित्या दी तो नित्या दा रैंक आ 9th राइट तो आप इत्थे लिखी नित्या राइट हमेशा आप इस साइड लेना है 9th राइट सुगन्या दा रैंक आपां नूं लैफ्ट तो दिता आप इत्थे लिख ली सुगन्या सुगन्या दा रैंक किया 10th फ्रॉम लैफ्ट सुगन्या आ गई 10th लैफ्ट ते नित्या आ गई 9th राइट हुण इन्हां ने सीटां बदल लियां इन्हां ने सीटां की कर लियां बदल लियां इत्थे आ गई नित्या इत्थे आ गई सुगन्या इत्थे नित्या इत्थे सुगन्या हुण आपां नूं की किया जदों इंटरचेंज कीती तां नित्या दा रैंक नित्या पहले आ 17th राइट नित्या दा रैंक आ 17th राइट सुगन्या दा रैंक आ 18th लैफ्ट हुण पुछया टोटल कुड़ियां कितनियां है वो दसो जी टोटल कुड़ियां कितनियां है वो दसना है हुण देखो अपने कोल सुगन्या दा रैंक आ नित्या दा रैंक आ ठीक है जी हुण बच्चों नूं लगदा है आ वखरे वखरे रैंक ने पर इक्को सीट दे रैंक ने हुण देखो आ सुगन्या बैठी आ सुगन्या बैठी आ भी सुगन्या दी ही सीट आ भी किहदी सीट आ सुगन्या दी बैठ कौन गया आके नित्या क्योंकि उन्होंने की कहा उन्होंने सीटां इंटरचेंज कर लिया इंटरचेंज कर लिया मतलब सीटां बदल लिया तो उन्होंने आपस में सीटां बदल लिया आ सुगन्या दी सीट सीगी आ भी सुगन्या दी सीट है बैठ कौन गया आके नित्या बैठ गई जे आपां ध्यान नाल वेखीए इक्को सीट दियां 2 पोजीशन वैल्यू आ लैफ्ट हैंड साइड तो दित्ती आ राइट हैंड साइड तो आ इक्को ही सीट दी 2 पोजीशन वैल्यू है एक लैफ्ट तो आ ते एक राइट तो आ तो आ इक्को सीट दी 2 पोजीशन वैल्यू आ तो आपां इहनूं किवें करांगे 10 + 17 - 1 तो अपने कोल टोटल कितनियां कुड़ियां आणगियां 26 ठीक है जी तो अपना जवाब आ गया 26 भावें आपां इधरों कैलकुलेट कर लिए तां भी 26 आऊगा आ नित्या दी सीट आ नित्या दी सीट आ बैठ कौन गया आके सुगन्या आ नित्या दी सीट है बैठ कौन गया आके सुगन्या आ भी नित्या दी सीट ही आ एक तरीके नाल सुगन्या बह गई हाँ जी 9 + 18 9 + 18 - 1 हुण -1 क्यों करे सीट तो इक्को ही आ रैंक वखरे वखरे आ एक लैफ्ट तो एक राइट तो आ सीट तो इक्को ही आ एक माइनस कर दो क्योंकि आपां इक्को सीट नूं 2 बारी काउंट कर लिया आ इक्को ही सीट आ 2 बारी काउंट होगी 9 भी ते 18 भी इक्को ही सीट दी 2 पोजीशन वैल्यू काउंट होगी तो एक बारी आपां की कर देना माइनस कर देना जी तो अपना जवाब की आ गया 26। चलो जी अगला सवाल वेखदे हां अगला सवाल अपना ब्लड रिलेशनशिप दा हाँ जी हुण आ क्वेश्चन किवें करदे हां फैमिली ट्री बना के तो फैमिली ट्री किवें बनाते हैं तुहानूं बहुत सौखे तरीके नाल सिखाया होया है तो चलो आप इस क्वेश्चन नूं करदे हां बी इज़ फादर ऑफ क्यू तो बी फादर आ क्यू दा तो आप इदां बनाना है क्योंकि प्यो आ तो उत्ते बनाएगा तो क्यू थल्ले बनूगा बी हैज़ ओनली 2 चिल्ड्रन बी दे 2 न्याणे ने एक आ ते एक आ क्यू इज़ द ब्रदर ऑफ आर क्यू भरा है आर दा तो आर इधर आ गई आर इज़ डॉटर ऑफ पी आर फीमेल आ तो आर किहदी डॉटर आ पी दी हुण मैनूं पता है कि बी दे 2 न्याणे हैं तो पी इहदी आर पी दी डॉटर आ यानी कि पी इहदी वाइफ होगी पी इहदी वाइफ होगी ए इज़ द ग्रैंड डॉटर ऑफ पी ए कौन आ पी दी ग्रैंड डॉटर हुण पी दी ग्रैंड डॉटर मतलब ए इधर आ जाएगा ठीक है हुण एदा है या एदा है नहीं पता ए जिहड़ी ग्रैंड डॉटर है इज़ द फीमेल एदी है कि एदी आ नहीं पता अगे देखते हैं अगे की कहता है एस इज़ फादर ऑफ ए एस फादर है एदा हुण देखो एस फादर है एदा ते इत्थे दा हो नहीं सकदा एस इधर आ जाऊगा एस पापा है एदे तां हुण एदी ही कुड़ी होएगी हाउ इज़ एस रिलेटेड टू क्यू एस क्यू दा की लग्या हुण आ दोनों भैन भरा ने आ दोनों की ने भैन भरा एस की लग्या एदा एस एदा की लगेगा जीजा ठीक है ब्याह तो बाद जिहड़े भी रिश्ते जुड़नगे नाल की वर्ड आ ला देना है इन लॉ नाल की वर्ड लग जाऊगा इन लॉ तो एस क्यू दा की लगेगा जीजा तो अपना जवाब की आ जाऊगा ब्रदर इन लॉ ठीक है जी। चलो जी
अगला सवाल भी अपना ब्लड रिलेशनशिप का फैमिली ट्री आ। ध्यान नाल वेखियो, आ सवाल थोड़ा जा औखा लगता बच्चों नूं। हाँ जी, ABCD 4 मेल्स ने जिन्हां दा विआह होया 4 फीमेल्स दे नाल। तो फीमेल्स की ने PQRS, 4 मेल है तो 4 फीमेल है, आपस च विआहे हुए ने। इन्हां दे अगे 5 बच्चे ने, आ 5 बच्चे ने, ठीक है। कपल्स दे जिहड़े 4 कपल सीगे उन्हां दे 5 बच्चे ने। B इज मैरिड टू S हू डज नॉट हैव एनी चाइल्ड। हुण B इज अ मेल ते इहदा विआह किहदे नाल होया? S नाल। ते इहदा कोई न्याणा नहीं है, तो इहदा कोई न्याणा नहीं है, तो एक कपल तो आ गया। U इज द ओनली सन ऑफ Q। U इज द ओनली सन। ओनली सन का मतलब क्या है? उहदा इकलौता मुंडा। आ नहीं कह सकते कि उहदा इक्को ही जवाक आ, ठीक है। आ नहीं आपां कह सकते कि उहदा इक्को ही जवाक आ। U इकलौता मुंडा है किहदा? Q दा। पर इहदा हो भैन हो सकती है, भरा नहीं हो सकता। U इज द ओनली सन ऑफ Q। और जिहड़ा Q है वो A नाल विआया नहीं होया। हुण Q कौन आ? फीमेल। Q दा विआह A नाल नहीं होया। हुण A दे नाल होया नहीं तो C दे नाल होया होएगा या D दे नाल होया होएगा। C दे नाल विआह होया होएगा या D दे नाल। तो आप इत्थे लिख लैंदे आ, एक कपल आ गया, एक कपल आ गया। W एंड X आर सिबलिंग्स एंड आर ऑफ डिफरेंट जेंडर्स। W ते X सिबलिंग्स ने ते वखरे वखरे जेंडर्स दे ने। हुण अपने कोल इहदे नाल एक लाइन आ दित्ती हुई है, आ रही, A हैज़ ओनली वन डॉटर X। A दी इक्को कुड़ी आ X। A हैज़ वन डॉटर X। तो इधर आ गई A। हुण A कौन आ? मेल आ। A कौन आ? मेल। तो आपां इहदे नाल आ जोड़ता। हुण क्या सी? W ते X की ने? सिबलिंग्स ने। दोनों के जेंडर वखरे ने, तो आ फीमेल आ, तो आ की हो गया? मेल हो गया। हुण इहदी वोटी देखनी है, इहदी वोटी। हुण अपने कोल S आ चुका है, Q आ चुका है, P या R। इहदी वोटी की होएगी? P या R। अगे पढ़ते हैं। C इज द फादर ऑफ 2 चिल्ड्रन। C जिहड़ा है वो 2 बच्चों का बाप आ। C जिहड़ा है 2 बच्चों का बाप आ। हुण इधर अपने कोल एक आया। हुण C एक होर जिहड़ा कपल है उत्थे भी हो सकता है। चलो अगे पढ़ते हैं। Y इज द डॉटर ऑफ R। Y डॉटर है R दी, तो Y डॉटर होगी R दी। हु डज नॉट हैव एनी अदर चाइल्ड। ओदा कोई होर बच्चा नहीं है, ठीक है। Y एक डॉटर है R दी ते ओदा होर कोई बच्चा नहीं है, यानी कि आ इकलौता बच्चा है इन्हां दा। हुण इधर R तो फीमेल आ। हुण मैनू कहा गया है इधर C या D चो आना है, तो मैनू एक चीज़ कही गई है कि C 2 बच्चों का बाप आ। C जे 2 बच्चों का बाप आ तो इधर तो C आ नहीं सकता, इधर आएगा, फिर इधर आ गया C तो इधर आ गया D, क्योंकि C 2 बच्चों का बाप है, इधर कोई होर नहीं आ सकता, इधर आ गया। तो इधर R आ गई तो इधर की आ जाऊगा? P आ जाऊगा। इधर R आ गई तो इधर की आ गया? P आ गया, ठीक है जी। हुण अपने कोल अगे की क्या है? Z इज द सिस्टर ऑफ U। Z सिस्टर आ U दी, तो Z कुड़ी सिस्टर आ U दी, तो Z इहदा दी कुड़ी होगी। मुंडा इक्को ही हो सकता सीगा, पर भैन हो सकती सी। आ बन गया चार्ट। एक कपल अपना आ रेडी हो गया, एक कपल आ रेडी हो गया, एक कपल आ रेडी हो गया, एक कपल आ रेडी हो गया। तो चलो आप आंसर देने आ। हाउ मैनी बॉयज आर देयर इन द ग्रुप ऑफ चिल्ड्रन। चिल्ड्रन के ग्रुप विच किन्ने मुंडे ने? हाँ जी, हुण चिल्ड्रन के ग्रुप विच किन्ने मुंडे ने? आ देखते हैं। एक आ मुंडा है, एक आ मुंडा है, तो की जवाब आ जाऊगा? 2। किन्ने मुंडे ने? 2। अगला सवाल आ, Z दे पापा कौन है? तो Z दे पापा कौन आ? देखो Z दे पापा कौन आ रहे ने? C। तो Z दे पापा कौन आ गए? C। तो अपना आंसर आ जाऊगा ऑप्शन नंबर C। अगे उन्हें क्या है कि दसो केड़ा कपल सही आ? केड़ा कपल सही आ? APBRCS। AP, हाँ जी AP बिल्कुल सही आ, ठीक है। तो अपना आंसर क्या आ जाऊगा? A। या तो अपने को ऑप्शन होंगी बोथ A एंड B, वो तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, इसका मतलब साढ़े को इक्को ही आंसर है, इक्को ही कपल आ। तो अपना पहले ही कपल सही आ गया, तो आप अगे जाना ही नहीं, अगे चैक ही नहीं करना। तो चलो जी, ये नाल ही आप वधदे हां अगले सवाल वाल। अगला सवाल आ अपना क्लॉक का। ध्यान नाल सुनियो, क्लॉक दे लास्ट ईयर भी 2 सवाल पूछे हुए सीगे। क्वेश्चन च कहंदा है जे मिनट हैंड ते सैकेंड हैंड ऑफ अ क्लॉक आर 25 मिनट्स अपार्ट। जे मिनट हैंड ते सैकेंड हैंड कितनी दूरी ते ने? 25 मिनटा की दूरी ते ने। तो दसो किन्ने डिग्री का एंगल बनूगा जी? किन्ने डिग्री का एंगल बनूगा? हुण इहदे च आपां ने याद रखना है 60 मिनटा च किन्ने डिग्री का एंगल बनता है? 360 डिग्री, ठीक है। 60 मिनटा च, क्योंकि आपको पता है जो मिनट हैंड है तो सैकेंड हैंड आ, और 60 मिनटा च 360 डिग्री का एंगल बनाता है, ठीक है जी। 60 मिनटा का 360 डिग्री, तो 1 मिनटा का 360 डिवाइड बाय 60 यानी कि 6 डिग्री, ठीक है जी। हुण आपां कितनी दूरी ते ने? 25 मिनटा की दूरी ते ने, तो 25 नाल गुणा कर देना। हुण आ 1 मिनट का सीगा ते
25 ਮਿੰਟ ਦਾ ਕੱਢਣ ਲਈ 6 × 25 ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਜਾਣਾ ਹੈ 150 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਕੀ ਜਵਾਬ ਆ ਗਿਆ ਜੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। ਹਾਂਜੀ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੇਪਰ 'ਚ ਔਖੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਸੌਖੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਤੇ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਤਾਂ ਵੈਸੇ ਹੀ ਡੂਏਬਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪੇਪਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਰੀਜ਼ਨਿੰਗ ਆਪਾਂ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅੱਛਾ ਸਕੋਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰ ਲਈਏ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਵੀ ਦੇਖੋ ਆਪਣਾ ਕਿਹੜਾ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਕਲੌਕ ਦਾ। ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ at 25 minutes past 10, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਆ 10:25 ਮਿੰਟ। past 10 ਮਤਲਬ 10 ਵੱਜ ਗਏ, 10:25 ਮਿੰਟ ਨੇ ਰਾਤ ਦੇ। ਦੱਸੋ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਦੋ ਸੂਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਐਂਗਲ ਬਣੇਗਾ ਉਹ ਦੱਸਣਾ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਾਰਮੂਲਾ ਕਰਾਇਆ ਹੋਇਆ ਥੀਟਾ ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ 11/2m ਮਾਈਨਸ 30h। ਭਾਵੇਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਭਾਵੇਂ ਆ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆਣਾ ਸੇਮ ਆਣਾ। ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰ, ਭਾਵੇਂ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ ਭਾਵੇਂ ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ਲਾ ਲਓ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਸਾਈਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਇਗਨੋਰ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਲਾਇਆ, ਦੂਜਾ ਵਾਲਾ ਲਗਾਉਂਦੇ ਆ। H stands for hour and M stands for minute। ਆਵਰ ਕਿੰਨਾ ਹੈ 10 ਵੱਜ ਕੇ, ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 25, ਮਿੰਟ ਕਿੰਨੇ ਨੇ 25। ਤੈਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ ਆਪਣਾ 300 ਡਿਗਰੀ। ਹਾਂਜੀ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕੀਤਾ ਆ ਗਿਆ 12.5 ਤੇ 12.5 ਨੂੰ ਹੁਣ 11 ਨੂੰ 12.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ਬਹਿ ਜਿਓ। ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਦੇਖੋ ਜੀ, 11 ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ 11 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆਉਂਦਾ 121। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ 12.5 ਲਿਆਣਾ ਤੇ 11 ਨੂੰ ਫੇਰ 1 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਆ ਗਿਆ 11। ਹੁਣ 11 ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲਓ ਜੀ 5.5, ਆ ਬਣ ਗਿਆ 12.5 ਤੇ 12.5 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਆ ਦੇਖੋ 12.5 ਨਾਲ 11 ਤੇ 1 12 ਤੇ 12.5, ਤਾਂ 11 ਦਾ ਸਕੁਆਇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ 121 ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਫਿਰ 11 ਨੂੰ 1 ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਫਿਰ 11 ਨੂੰ ਅੱਧੇ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ। ਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਦਾ ਜੋੜ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏਗਾ 5 5 6 7 137.5 ਤੇ 300 ਡਿਗਰੀ ਚੋਂ 137.5 ਕੱਟੇ ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਜਾਏਗਾ 162.5। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਆਨਸਰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਡੀ। चलो जी अगला सवाल वेखते हैं। अगला सवाल की कहता है, अगला सवाल है अपना कोडेड इनइक्वालिटीज का, ठीक है जी। अपने क्वेश्चन च दिता है कि एट द रेट का मतलब आ कि पी वड्डा नहीं है क्यू तो। हाँ जी हुण अपने कोल बेसिकली 3 तरह के साइन होंगे, आ वाला या तो वड्डा होएगा या छोटा होएगा या बराबर होएगा, वड्डा होएगा छोटा होएगा या बराबर होएगा। हुण उन्हें कहा कि पी वड्डा नहीं है, हुण वड्डा नहीं है तो की होएगा छोटा होएगा या बराबर होएगा, ठीक है। पर डेफिनेटली नहीं कह सकते कि छोटा ही होएगा या बराबर ही होएगा, दोनों चो एक चीज होएगी, ठीक है। आ चीज तो बिल्कुल नहीं है, या तो आ होएगी या आ होएगी, या आ, पर आ बिल्कुल नहीं होना। अगे उन्हें की क्या परसेंटेज का मतलब की है कि पी छोटा नहीं है क्यों तो, पी छोटा नहीं है तो छोटा नहीं है तो की हो सकता है वड्डा होएगा या बराबर, ठीक है जी। एदा मतलब किया वड्डा और इक्वल, एदा मतलब किया छोटा या बराबर, ठीक है जी। पर आप इस साइन नू आ डिनोट कर दें। अगे उन्हें की क्या पी नीदर स्मॉलर नॉर इक्वल, छोटा तो इक्वल नहीं है, छोटा तो इक्वल नहीं है तो आदि आ गया ग्रेटर। अगे उन्हें की क्या ग्रेटर नहीं है तो इक्वल नहीं है तो छोटा आ जाऊगा। इधर उन्हें कहता ग्रेटर तो स्मॉलर दोनों नहीं है तो की आ गया बराबर। हुण आपां इत्थे साइन फिल करने हैं तो जवाब देना है कि किहड़ा सही आ। तो चलो आपां साइन फिल करते हैं। W क्वेश्चन मार्क B, हाँ जी क्वेश्चन मार्क का मतलब की कहता है ग्रेटर, आ बन गया। हुण आ B सेम ने तो आप एक ही रखते हैं। एट द रेट का मतलब की कहता है, एट द रेट का मतलब कहता है लैस दैन और इक्वल। हाँ जी कॉपीराइट का मतलब की कहता है लैस दैन। डॉलर का मतलब की कहता है बराबर, आ बन गया। हुण आपां दसना है किहड़ा कंक्लूजन सही आ, ठीक है जी। तो पहला कंक्लूजन की आ क्वेश्चन मार्क च की कह रहा सीगा ग्रेटर, ठीक है। फिर क्वेश्चन मार्क ग्रेटर, फिर क्वेश्चन मार्क ग्रेटर, फिर क्वेश्चन मार्क ग्रेटर, सारे ही ग्रेटर ने। तो मैं वीडियो बनाई सी तो तुहानूं दस्सिया सीगा जदों अपने साइंस इक्वेशन दे विच सेम डायरैक्शन च जाणगे उदों ही सही हो सकता है, ठीक है जी। तो आ ध्यान नाल देखियो, जिन्हां ने वीडियो नहीं वेखी वो वेख लियो। हुण आ देखो जी W तो F, हुण W तो F दे विच देखो साइन की हो गए पुट्ठे हो गए, रुस के बह गए, आ की हो जाऊगा गलत हो जाऊगा। अगला देखो जी M तो B, M तो B दे विच M दे वाल साइन चाहिए, तो हुण M ते B दे विच देखिए तो सेम डायरैक्शन च साइन जा रहे ने तो एक ग्रेटर तो अपना आ रहा है तो M इज़ ग्रेटर दैन B, ठीक है जी। तुहानूं एक चीज़ आ भी दसी सीगी जदों आपां नूं डबल साइन मंगे है तो सीरीज़ दे विच सारिਆਂ च डबल साइन आना चाहिए, पर इत्थे आपां नूं सिंगल साइन ही मंगਿਆ तो सिंगल साइन अपने कोल आ रहा है। मैनूं छोटा बना देनी तुहाडे लई, आ बन गया।
आर ते एम बराबर है, जे मैं इधर एम करदा उधर आर करदा कोई फर्क नहीं पिया। हुण अपने कोल एम वड्डा चाहिदा बी लई, तो बिल्कुल सही आ रहा है। आपां नूं मैं तुहानूं दस्सिया सी आ साइन मंगिया, आ साइन दोनां च आ रहा, तो बिल्कुल सही। अगला की है आर तो बी। हुण मैनूं पता है एम ते आर की ने बराबर ने, एम ते आर की ने बराबर, तो जे मैं इत्थे आर लिखदा फिर इधर एम करदा तो इक्को ही गल आ। हुण आ देखना है, हुण इधर भी आर वड्डा है बी, तो बिल्कुल सही आ रहा है, बिल्कुल सही। ठीक है जी, इक्को साइन है, भावें खोल के देख लो। हुण देखो जदों मैं इहनूं खोलांगी, एक बारी इदां खुलेगा, एक बारी इदां खुलेगा, एक बारी इदां खुलेगा, एक बारी इदां खुलेगा। क्यों? क्योंकि इत्थे डबल साइन है। इहदा की मतलब है, या तो छोटा होएगा या बराबर होएगा, दोनों चों एक चीज़ होनी है, छोटा या बराबर। हुण देखो जे मैं भी चेक करा आर वड्डा है बी तो बी ते एफ बराबर है। आ चेक करा इत्थे भी की आ रहा है आर वड्डा है बी तो सारे च आ रहा है, तो दोनों च आ रहा है, तो आ सही हो गया। हुण अगला की है एम तो डबल्यू। हाँ जी, हुण एम तो डबल्यू दे विच देखो सीरीज़ दे विच पुट्ठे साइन आ रहे ने। आ देखो एक आ हो गया, आ हो गया, आ हो गया, आ हो गया। हुण आ रुस के बैठ गया, जे आ भी इधर नूं जांदा तो सही हो सकदा सीगा, आ भी साइन इधर नूं जांदा तो सही हो सकदा सीगा, पर आ पुट्ठा हो गया तो की हो गया फॉल्स। तो अपना केड़ा कंक्लूजन सही है? सिर्फ सैकेंड ते थर्ड। केड़ा कंक्लूजन सही है? सिर्फ सैकेंड ते थर्ड। तो आंसर की आ जाऊगा ऑप्शन नंबर बी। आपां ने कोडिड इनइक्वालिटीज बिल्कुल बेसिक जिहियां चीज़ां करनियां ने, ते जे आपां इस चीज़ां दा ध्यान रखांगे तो अपना क्वेश्चन बहुत ही सौखे तरीके नाल हो सकदा है। तो चलो जी अगले सवाल वाल वधदे हां। अगला सवाल भी कोडिड इनइक्वालिटीज दा है, तो वेखदे हां इस क्वेश्चन दा जवाब की आना। हाँ जी, इस क्वेश्चन च पूछा है कि दसो इत्थे आपां केड़ा साइन फिल करिए इस क्वेश्चन मार्क च जिहदे नाल आ भी सही आवे तो आ भी सही आवे। हुण आपां नूं पता है ए इज ग्रेटर दैन डी चाहिए, तो एफ इज ग्रेटर दैन सी चाहिए, यानी कि ए ते डी दे विच आपां नूं सेम डायरैक्शन च साइन चाहिए हैं। सेम डायरैक्शन च साइन होणगे तां ही सही होऊगा। ठीक है, जे आपां रुस के बह गया तो गलत हो जाऊगा, तो अपना इधर वाले साइन तो बिल्कुल गलत हो गए, यानी कि अपना आंसर बी ते सी तो बिल्कुल नहीं आना। तो अपना जवाब ए भी आ सकता है तो डी भी आ सकता है, ए ते डी दोनों आ सकते हैं। जे मैं इदा पा दा तो ए वड्डा है डी तो बिल्कुल सही, जे मैं इत्थे बराबर पा दा तो भी सही है क्योंकि डी इधर आ गया, तो ए वड्डा है डी तो दोनों साइन चल रहे हैं। तो अपने इत्थे दोनों साइन चल रहे हैं, पर आपां ने नाल नाल इनू भी देखना है कि आ भी सही होना चाहिए। हुण इनू देखण लई आपां इधर देखदे हां एफ तो सी। हुण आपां इत्थे नोट करदे हां, आ गया। हुण आपां ने हाले तक आ दो साइन चलाए सीगे, जे मैं आ साइन पा दा, जे मैं साइन आ पा दा तो आ तो ऑपोजिट हो गए, आ तो ऑपोजिट हो गए। एफ ते सी दे विचकार सारे सेम डायरैक्शन च साइन जाणगे फिर ही सही होगा। ए पुट्ठा मुंह करके बैठ गया, रुस के बह गया, आ तो फिर की हो गया, गलत हो गया, आ तो चलना नहीं। तो जे मैं दूजा इक्वल का निशान पा दा, जे मैं इक्वल का निशान पा दा, सी ते डी बराबर, सी इधर आ गया, एफ ते ई बराबर, एफ इधर आ गया, तो एफ इज ग्रेटर दैन इक्वल्स टू सी, बिल्कुल सही। तो अपना केड़ा साइन चलिया जी? ए इक्वल का निशान, तो अपना जवाब की आऊगा डी ऑप्शन। तो केड़ा साइन चलिया जी? डी ऑप्शन। चलो जी, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ही आप अगले सवाल वाल वधदे हां। अगला सवाल है अपना काउंटिंग ऑफ फिगर्स। हाँ जी, दो सवाल होर करा रही हैं, एक आ वाला तो एक अगला। आज अपने लास्ट सवाल ने बहुत इंपॉर्टेंट ने, ध्यान नाल समझियो। हाँ जी, क्वेश्चन च की कहता है, हाउ मेनी रेक्टेंगल्स आर देयर इन दिस फिगर? किन्ने रेक्टेंगल्स ने इस फिगर दे विच? देखो जे अपना फिगर इस तरह दी आवे, जे अपना फिगर इस तरह दी आवे तो आप रेक्टेंगल्स किवें फाइंड आउट करदे हां? आपां की करना है 1 2 3, तो इधर भी ऐड किया 1 2, ਇਹਦਾ जोड़ करना है 1 + 2 3, 3 + 3 6, ਇਹਦਾ जोड़ किया 1 + 2 3, आ 6 ਤੇ 3 ਨੂੰ ਕੀ ਕਰ ਦੇਣਾ? गुणा कर देना। किन्ने रेक्टेंगल्स आए? 18। किन्ने रेक्टेंगल्स आए? 18। पर अपनी ਜਿਹੜੀ फिगर आ इस तरह की बिल्कुल नहीं है, तो ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਨੂੰ इंडिविजुअल फिगर ਲਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ इस फिगर ਨੂੰ ਲਿੱਤਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ रेक्टेंगल्स काउंट करने 1 2 3, 1 + 2 3, 3 + 3 6। ਹੁਣ इस फिगर च किन्ने रेक्टेंगल्स आए? 6। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਮੈਮ ਕਿਵੇਂ? ਆਪਾਂ ਚੈੱਕ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਆ ਪਹਿਲਾ, ਆ ਦੂਜਾ, ਆ ਤੀਜਾ। ਹੁਣ ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਚੌਥਾ, ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਪੰਜਵਾਂ, ਆ ਤਿੰਨਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਦਾ ਤਾਂ ਛੇਵਾਂ, ਬਣ ਗਏ 6 ਰੈਕਟੈਂਗਲ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਲੈਂਦੇ ਆ ਅਗਲੀ ਫਿਗਰ। ਆਪਾਂ ਲਿੱਤੀ ਆ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ। ਹੁਣ ਆ ਵਾਲੀ ਫਿਗਰ 'ਚ 1 ਤੇ 2, 1 + 2 3, 3 ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣੇ। ਹੁਣ ਬੱਚਾ ਕਹੇਗਾ ਕਿਵੇਂ? ਆ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਰੈਕਟੈਂਗਲ, आ दूजा रैक्टेंगल, तो जे मैं इन्हों जोड़दा, 1 ते 2 तीजा रैक्टेंगल, तो 3 बन गए। आ तो बने एदे ते एदे,
ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜੋੜਦਾ, ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜੋੜਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੀ ਜੋੜਦਾ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਬਣੂਗੇ? ਹਾਂਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਬਣੂਗਾ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਆ ਵੱਡੇ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਬਣੂਗਾ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਜੋੜਿਆ, ਦੂਸਰਾ। ਇੱਕ ਤੀਜਾ ਬਣੂਗਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਤੀਜਾ ਬਣੂਗਾ ਆ ਵਾਲਾ, ਤਾਂ 3 ਰੈਕਟੈਂਗਲਸ ਹੋਰ ਵੱਧ ਗਏ। ਤਾਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਕੀ ਆ ਗਿਆ? 12। 6 + 3 9, 9 + 3 12। ਹਾਂਜੀ, ਆ ਕੁਐਸਚਨਸ ਵੀ ਕਰਨੇ ਸੌਖੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦਿਮਾਗ ਲਗਾਣਾ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ, ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਨੀ ਪਊਗੀ। ਤਾਂ ਚਲੋ ਜੀ, ਅੱਜ ਦੇ ਲਾਸਟ ਸਵਾਲ ਵੱਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਆਪਣਾ ਆਇਆ ਕਿਊਬਸ ਦਾ। ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਨੇ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਕੁਐਸਚਨ 'ਚ ਕਿਊਬ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਆਹੀ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਬੱਚਾ ਕੀ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦਾ ਹੈ? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। ਜਿਹੜਾ 10 ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਕਿਊਬਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ? ਇੱਥੇ ਕਾਊਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ 1 2 3 4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਦਿਖ ਰਿਹਾ 1 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ ਇੱਥੇ 2 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 3 ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਫਿਰ 4 ਦਿਖ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਗੁਣਾ ਕਰ ਲੈਣਾ ਇਹਦੇ ਉਲਟੇ ਨਾਲ, ਰਿਵਰਸ। 1 2 3 4 ਦਾ ਰਿਵਰਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? 4 3 2 1। ਇਹਦੇ ਰਿਵਰਸ ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕਰ ਦੋ। ਹੁਣ 1 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ ਗੁਣਾ ਕੀਤਾ 4, 2 ਨੂੰ 3 ਨਾਲ ਕੀਤਾ 6, 3 ਦੂਣੀ 6, 4 ਨੂੰ 4 ਨਾਲ, ਤਾਂ 4 + 6 10, 10 ਤੇ 10 20। ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਕਿਊਬਸ ਨੇ? 20। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਸੌਖਾ ਤਰੀਕਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਹੋਣਾ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿਣਗੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ YouTube ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਸਾਨੂੰ ਪਿਆਰ ਬਖਸ਼ਦੇ ਰਹੋ। ਸਕਸੈਸ ਟਰੀ ਪੰਜਾਬ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੜਿਆ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤਾਂ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੂੰ ਲਾਈਕ ਤੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਨਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ। ਧੰਨਵਾਦ, ਥੈਂਕ ਯੂ।